Right, we are talking about the malignant tumors, especially the squamous cell carcinoma, because the majority of the malignant tumors of the larynx are the squamous cell carcinomas. Other rare malignant tumors include the epithelial origin wale mesenchymal origin tumors, right? But the squamous cell carcinoma, yeah, are the top ones. Arising from the epithelium, yeah, they include the adenocarcinoma, basal cell carcinoma, adenoid cystic carcinoma, and the verrucous carcinoma. These 1, 2, 3, 4, they are of the epithelial origin. Rising from the mesenchymal tissue, they include the lymphoma, fibrosarcoma, chondrosarcoma. Doesn't matter. The topmost is the squamous cell carcinoma. Let's talk about the squamous cell carcinoma. It's the most common one. Among the list of the top 10 commonest malignancies in the Pakistan, top 10 की लिस्ट में स्क्वामस सेल कार्सिनोमा का नाम आता है. अच्छी बात ये इसकी प्रोग्नोसिस अच्छी है. टॉकिंग अबाउट द इंसिडेंस, मेल प्रीपॉन्डरेंस होती है इसकी, मेल में ज़्यादा होता है. पीक एज प्रेजेंटेशन बिटवीन द 40 to 60 ईयर्स, 40 से 60 साल की उम्र में ये होता है. उसके अलावा बच्चों के अंदर तो बहुत ही रेयर है ये. Why squamous cell carcinoma of the larynx? Any etiology? Well, the defined etiology is not there. No known etiology. But some etiological factor, risk factor तो ज़रूर हैं. जैसे कि smoking, tobacco in the form of hookah, बीड़ी, chewing tobacco. बस tobacco is the source risk. Smoking, tobacco, alcohol consumption. उसके अलावा दूसरे factor environmental pollution, vocal abuse, radiation to the neck. हेड एंड नेक की रेडिएशन करा देना तो उसमें लेरिंग्स का कैंसर हो जाता है. ऑक्यूपेशनल एक्सपोजर टू द एस्बेस्टोस, आप ऐसी इंडस्ट्री में करते हो जहाँ काम करते हो जहाँ एस्बेस्टोस का एक्सपोजर है तो उस वजह से भी सी ए लेरिंग्स हो सकता है. ठीक है. इन चाइल्डहुड द लेरेंजियल कार्सिनोमा रेडिएशन इज द इम्पॉर्टेंट thing because as malignant change may occur in the juvenile laryngeal papillomatosis treated with the radiation. ये बात आपको समझ आई बच्चों? देखें हम तो अभी स्क्वामस सेल कार्सिनोमा डिस्कस कर रहे हैं, लेकिन आपको पता है पीछे मैंने आपको पढ़ाया था एक जुवेनाइल पेपिलोमटोसिस, मल्टीपल पेपिलोमा जो बच्चों में होते हैं, ये डेवलप हो सकता है स्क्वामस सेल कार्सिनोमा में अगर बच्चों को आपने रेडिएशन प्रोवाइड की हेड एंड नेक की या किसी भी वजह से. सो अभी तक क्या समझ में आया? बहुत सारे मेलिग्नेंट कैंसर है लेरिंग्स के, लेकिन द कॉमनेस्ट वन इज द स्क्वामस सेल कार्सिनोमा. मेल्स में ज़्यादा होता है, 40 से 60 साल की एज में होता है, बच्चों में बहुत रेयर है. एटियोलॉजी कोई डिफाइंड नहीं है, लेकिन कुछ रिस्क फैक्टर हैं. स्मोकिंग, टोबैको, एनवायरमेंटल पोल्यूशन, रेडिएशन टू हेड एंड नेक, एस्बेस्टोस और दूसरे मेटल्स बच्चों में नहीं होता भी है तो जो बच्चों को जुवेनाइल पेपिलोमाटोसिस होता है ना वो स्क्वामस सेल कार्सिनोमा में डेवलप हो सकता है ड्यू टू रेडिएशन स्पेशली. Talking about the pathology of this malignant tumor, that is the squamous cell carcinoma, well, it develops not only from the areas normally covered by the squamous epithelium, but it also arises from the areas that are lined by the ciliated columnar and the transitional epithelium. It's a really interesting story. Squamous cell carcinoma, for the now, it's a big news, not only arises from the areas which are covered by the squamous epithelium, but also from the regions of the ciliated columnar epithelium, regions of the transitional epithelium, right? Yeah, that's it. And in the larynx, this cancer, squamous cell carcinoma, it is classified according to the regions. Okay. So, according to regions, according to the exact site of the involvement of the larynx, it can be supraglottic. I mean to say, if this is the larynx, it has got three portions: supraglottic, glottic and subglottic region, right? If the squamous cell carcinoma arises in this supraglottic region, then it is said to be the supraglottic squamous cell carcinoma. If it arises in the glottis, it is said to be the glottic squamous cell carcinoma. If it arises in the subglottic region, it is said to be the subglottic squamous cell carcinoma. And what about this transglottic one? Transglottic carcinoma are actually the glottic lesions. That involve both supraglottic and subglottic. Only restricted to supraglottic, it is said to be the supraglottic. If it is restricted only to the glottis, it is said to be the glottic squamous cell carcinoma. Only restricted to the subglottis, it is said to be the subglottic squamous cell carcinoma. But if it is arising from the glottis and extending into the supraglottis and subglottis, it's a transglottis.
Talking about the glottic carcinoma, this one it's the most common variety. 76% cases arising from the true vocal cords, right? And true vocal cords, maybe anterior half of the vocal cord is more commonly involved. And at number 2 comes the supraglottic up to 19%, and the subglottic and subglottic carcinomas are the uncommon up to 1 to 5% only, right? Transglottic carcinomas are the glottic lions that invade the both supraglottic and subglottic. पहले मैंने तीनों का इंसिडेंस बताया. This is for the glottic, this is for the supraglottic and this is for the subglottic, right? मोस्ट कॉमन हो गया ग्लोटिक, उसके बाद फिर दूसरे नंबर पे सुप्राग्लोटिक, फिर तीसरे नंबर पे सबग्लोटिक. ट्रांसग्लोटिक क्या होता है? जो कि ग्लोटिक लाइन है और फिर इन्वेट करे सब सुप्राग्लोटिक को और सबग्लोटिक रीजन को. सही बच्चों, इस तरीके से. या स्क्वामस सेल कार्सिनोमा बहुत डीपली एक्सटेंड करता है, ठीक है, एंड इट कैन क्रॉस द लैरिंजियल वेंट्रिकल्स vertically to involve 2 or more anatomical areas. I'll talk about this in detail, don't worry. If you talk about the another classification of the squamous cell carcinoma, ये classification squamous cell carcinoma की थी site of origin की base पे. Now on the basis of the histology, under microscope, squamous cell carcinoma can be either well differentiated, looking more like the laryngeal tissue, moderately differentiated or poorly differentiated. Poorly differentiated means the cancer is looking not like the larynx anymore. However, it is actually arising from the larynx. It should look like the larynx. The tissue present in the cancer should look like the laryngeal tissue. There should be the resemblance between the laryngeal carcinoma and the laryngeal tissue. If it is well differentiated, it will show the similarity between the laryngeal tissue and the tissue in the cancer. If it is poorly differentiated, you will be unable to differentiate, right? क्योंकि दोनों अलग सी चीज़ें होंगी, ठीक है, इस तरीके से. And here is the beta grading of the squamous cell carcinoma of the larynx given by the Broder. It's a Broder's grading of the squamous cell carcinoma, और उसके मुताबिक 4 तरह का होता है स्क्वामस सेल कार्सिनोमा लैरिंक्स का. ग्रेड 1, 2, 3, 4. 1 when it is well differentiated, I mean more than 70% of the cells are differentiated and 20% poor differentiation is there. When in the squamous cell carcinoma of the larynx is only 51 to 75% differentiated, it is said to be grade 2. If the squamous cell carcinoma of the larynx is differentiated more than 75%, it is grade 1. If it is differentiated from 51 to 75%, it is said to be the grade 2. And if it is differentiated from like 26 to 50% cells are differentiated and all other are poorly differentiated, it's the grade 3 variety. And the really nasty variety with a very poor prognosis is the grade 4 variety, in which differentiation is only less than 25% and remaining all is the poor differentiation, right? Okay, and yeah, this is the picture. You can see this is the squamous cell carcinoma. This is a squamous cell carcinoma and arising from the vocal cord, left true vocal cord. ये right side का vocal cord है, left side का vocal cord है, and this is the squamous cell carcinoma. This is the squamous cell carcinoma arising from the left true vocal cord. ठीक है बेटा, इस तरीके से. अब इसके बाद from here onwards I'll be discussing beta the spread of the squamous cell carcinoma of the larynx. The cancer is present in the larynx, but it spreads out of the larynx. डायरेक्ट स्प्रेड भी हो सकता है, लिम्फेटिक्स के थ्रू भी हो सकता है, और ब्लड के थ्रू भी, यानी कि हेमाटोजिनस स्प्रेड भी हो सकता है. इफ टॉक अबाउट द डायरेक्ट स्प्रेड, देन व्हाट हैपेंस, जो डायरेक्ट स्प्रेड होता है वो मोस्टली आई शुड से मोस्ट ऑफ द ग्लोटिक कार्सिनोमास वो अपनी जगह से निकल के एक्सटेंड कर जाते हैं डायरेक्टली इनटू द 3 प्लेन्स. समझ आई बात? मैं ये कहना चाह रहा हूँ, अब देखें, लैरिंक्स के अंदर मौजूद है स्क्वामस सेल कार्सिनोमा, ठीक है. अब ये लैरिंक्स में जो स्क्वामस सेल कार्सिनोमा मौजूद है वो स्प्रेड करता है.
डायरेक्टली भी, लिम्फेटिक्स के थ्रू भी, या फिर ब्लड वेजल्स के थ्रू भी। तो पहले हम डायरेक्ट स्प्रेड को देखते हैं, ठीक है। जो ग्लोटिस के अंदर स्क्वामस सेल कार्सिनोमा मौजूद होता है वो 3 प्लेन्स में एक्सटेंड करता है, ठीक है। या व्हाट 3 प्लेन्स that these tumors, the glotic carcinoma glotic carcinoma beta can extend directly into the all 3 planes. कौन से 3 planes? Let me tell you. One is the glotic plane, ठीक है, and one is the vertical plane, right, and one is the deep horizontal plane. In glotic plane it can extend anteriorly and posteriorly. In the vertical plane it can extend above or below the vocal cords, and in the deep horizontal plane it can involve the deeper structures of the neck. समझ आई बात? नहीं आई समझ? एक पेशेंट है जिसको लैरिंग्स के अंदर कैंसर है, खास करके ग्लोटिक कार्सिनोमा है, ठीक है। क्या वो डायरेक्टली स्प्रेड कर सकता है? बिल्कुल कर सकता है। कौन से 3 प्लेन्स में स्प्रेड कर सकता है? ग्लोटिक प्लेन, वर्टिकल प्लेन, हॉरिजॉन्टल प्लेन। ग्लोटिक प्लेन में 2 साइड पे एक्सटेंड कर सकता है, या तो आगे एंटीरियर डायरेक्शन में या पीछे पोस्टीरियर डायरेक्शन में, पोस्टीरियर लेरेंजियल वॉल की तरफ या एंटीरियरली आगे थायराइड की तरफ, फ्रंट ऑफ द थ्रोट की तरफ। एंड इट कैन आल्सो एक्सपेंड इन द वर्टिकल प्लेन, लाइक इट कैन गो अबव the vocal cords, above the glottic area into the supraglottic area, or it can go down into the subglottic area. And the number 3 plane is the deep horizontal plane, in which the tumor can extend not the anterior posteriorly, not the kind of vertically ऊपर नीचे, horizontal plane. It can go deeply into the other structures of the neck, soft tissue of the neck. I hope this is clear to you. This was about the glottic tumors. At number 2 are the supraglottic tumors. You know what, beta? Most of the supraglottic tumors are exophytic. They are well differentiated, and by the way, they are less invasive. तो ये डायरेक्टली तो स्प्रेड होते ही नहीं हैं, ठीक है। The supraglottic tumors. Supraglottic carcinoma may extend. If it extends, by the way, it is very much less invasive. But if it extends cranially and involves the vallecula and the base of the tongue. अगर आपको डायरेक्ट स्प्रेड में जो मैंने बातें कही वो समझ आ गई, डन विथ दिस, राइट। 2 बातें अभी तक मैंने बता दी। एक तो ग्लोटिक कैंसर का बताया मैंने, एक सुप्राग्लोटिक कैंसर का बताया। ग्लोटिक कैंसर कहाँ कहाँ स्प्रेड कर सकता है डायरेक्टली? 3 प्लेन बताए। सुप्राग्लोटिक ट्यूमर वैसे तो लेस इन्वेजिव होता है, लेकिन कहाँ स्प्रेड कर सकता है? वेलिकुला में, और बेस ऑफ टंग को इन्वॉल्व कर सकता है, सही है। And what about the subglottic carcinoma? It usually grows circumferentially and involves both the sides. It can spread anteriorly to the cricothyroid membrane or may invade the trachea caudally. यानी कि ये anteriorly भी जा सकता है आगे, और नीचे भी जा सकता है caudally. Anteriorly जाके cricothyroid membrane को इन्वॉल्व करता है और नीचे जाके ट्रेकिया को इन्वॉल्व करता है। तो तीनों कैंसर समझ आ गए। पहले ग्लोटिक कैंसर, फिर सुपराग्लोटिक कैंसर, फिर सब ग्लोटिक कैंसर। डायरेक्टली कहाँ कहाँ स्प्रेड हो सकते हैं? आई होप यू आर क्लियर विद दिस नाउ द लिम्फेटिक स्प्रेड। अगर आपके लैरिंग्स में कैंसर मौजूद है, क्या वो लिम्फेटिक्स के जरिए फैल सकता है? बिल्कुल फैल सकता है, रीजनल लिम्फ नोड्स में जा सकता है। जो ग्लोटिक एरिया का कैंसर है उसकी मिनिमल लिम्फेटिक ड्रेनेज होती है। तो अगर आपके लैरिंग्स में कैंसर है, खास करके ग्लोटिक एरिया में, तो शायद लिम्फ नोड्स इतने इन्वॉल्व ना हो, क्योंकि जो ग्लोटिक एरिया होता है उसके अंदर लिम्फेटिक ड्रेनेज बहुत कम होती है, इसलिए लिम्फ नोड बहुत रेयरली इन्वॉल्व होते हैं। एंड व्हाट अबाउट द हेमाटोजीनस स्प्रेड? ब्लड वेजल्स के थ्रू भी ये ट्यूमर स्प्रेड करता है, और स्प्रेड करके लंग्स के पास जाता है। लंग्स इज़ द कॉमनेस्ट साइट। उसके अलावा लिवर, बोन्स और किडनीज के पास, ब्रेन के पास भी ये ब्लड के थ्रू जा सकता है, ठीक है बच्चों। इस तरीके से क्लासिफिकेशन एंड स्टेजिंग, AJCC क्लासिफिकेशन है, TNM क्लासिफिकेशन है, ठीक है। तो उसको ज़रा आप डिस्कस करते हैं, इसकी स्टेजिंग को, तीनों चीज़ें, ठीक है। एक तो हम 3 चीज़ें होती है ना बेटा, एक तो एक्सटेंट ऑफ द ट्यूमर, दैट इज़ द T, एंड N इज़ द इन्वॉल्वमेंट ऑफ द लिम्फ नोड्स, M इज़ द मेटास्टेसिस। तीनों चीज़ों को डिस्कस करते हैं, ठीक है बच्चों, इस तरीके से, राइट बेटा। सो द एक्सटेंट ऑफ द ट्यूमर T
extent of the tumor T for the supraglottic squamous cell carcinoma, for glottic squamous cell carcinoma and the subglottis. So इसमें कितनी बेटा, इसमें एक तो आ जाता है T1, T2, T3 और T4, T4A, T4B, सही है. It is said to be T1 supraglottic squamous cell carcinoma of the larynx when the tumor is limited only to one subsite of the supraglottis, यानी कि supraglottis में ट्यूमर मौजूद है, supraglottis के किसी एक हिस्से में, और वोकल कॉर्ड की मोबिलिटी बिल्कुल नॉर्मल है. ठीक है, चल. It is said to be T2 supraglottic squamous cell carcinoma of the larynx when the tumor invades mucosa of more than one subsites of the supraglottis. यानी कि अब है ट्यूमर सुप्राग्लोटिस में ही, लेकिन सुप्राग्लोटिस के अंदर भी दो पैचेस, दो सबसाइट्स इन्वॉल्व हो चुकी हैं. ठीक है, मिकोजा के अंदर इन्वेट कर चुका है ट्यूमर. आर द मिकोजा ऑफ द एनी ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रक्चर्स विदाउट वोकल कॉर्ड फिक्सेशन. That include glottis, medial wall of the piriform sinus, vallicula and base of the tongue. T1 वोकल कॉर्ड बिल्कुल ठीक थे. ट्यूमर लैरिंग्स के ट्यूमर जो है सुप्राग्लॉटिक रीजन में सिर्फ एक सबसाइट पे मौजूद था बस. T2 ऐसी कंडीशन है जिसमें वोकल कॉर्ड तो नॉर्मल होते हैं, वोकल कॉर्ड फिक्स नहीं हुए अभी तक, लेकिन ट्यूमर जो है एक से ज़्यादा सबसाइट पे मौजूद है और ट्यूमर जो है म्यूकोजा में इन्वेट करके थोड़ा बाहर निकल के किसी और चीज़ को भी इन्वॉल्व कर चुका है, जैसे कि ग्लॉटिस या मीडियल वॉल ऑफ पायरिफॉर्म साइनस या वेलिकुला या बेस ऑफ द टंग. क्लियर हो गया. T3 when the tumor is limited to the larynx but the problem is vocal cord are fixed, they are involved, right, their mobility is affected. ठीक है, with vocal cord fixation plus minus involvement of the any other structure like the postcricoid area, preepiglottic or paraepiglottic space, inner cortex of the thyroid cartilage plus minus. यानी कि लैरिंक्स में ट्यूमर मौजूद है, वोकल कॉर्ड ख़राब हो चुके हैं, उसके अलावा ये सारी जगह इन्वॉल्व हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती, प्लस माइनस एंड और. Said to be T4A when the tumor invades the thyroid cartilage and any of the following extralaryngeal structure: esophagus, trachea, thyroid, infrathyroid, strap muscles, tongue muscles. Right? So ट्यूमर जो है लैरिंक्स में है, उसके अलावा थायराइड कार्टिलेज को लैरिंक्स ने इन्वॉल्व किया है, और थायराइड कार्टिलेज को इन्वॉल्व करने के अलावा इन सब एक्स्ट्रा लैरिंजियल स्ट्रक्चर्स में से कोई एक स्ट्रक्चर, या तो फिर ईसोफेगस या तो ट्रेकिया या थायराइड ग्लैंड या इंफ्राहाइवाइड स्ट्रेप मसल्स और टंग मसल्स. दोबारा लैरिंक्स में मौजूद है कैंसर, थायराइड कार्टिलेज को इन्वॉल्व किया है और फिर किसी एक एक्स्ट्रा लैरिंजियल स्ट्रक्चर को. ठीक है. एंड सेटिविटी फॉर बी जब ट्यूमर बहुत दूर दराज निकल गया है, प्रीवर्टिब्रल स्पेस में, मीडियास्टिनम में, कैरोटिड आर्टरी में, इस तरीके से. इट वाज अबाउट द सुप्राग्लॉटिक ट्यूमर. नाउ टाइम फॉर द ग्लॉटिक ट्यूमर, राइट, द ट्यूमर ऑफ द कैंसर ऑफ द ग्लॉटिस. सेड टू बी बेटा T1 व्हेन द ट्यूमर इन्वॉल्व्स ओनली द वोकल कॉर्ड्स. ठीक है. Well, the vocal cords are involved by the tumor. Anterior or posterior commissure is also involved, but the good thing is still the mobility of the vocal cords is normal, right? It's said to be the T1 glottic squamous cell carcinoma of the larynx when the tumor is in the glottic region involving the vocal cords or the anterior posterior commissure, but the vocal cord mobility is still normal, and it is said to be type 1A when the tumor involves only one vocal cord with the normal vocal cord mobility, and it is said to be type 1B when both the vocal cords are involved but still the vocal cord mobility is normal. It is said to be type T2 when the tumor spreads to the supraglottic region or the subglottic region from the glottic region. ठीक है. Is said to be T2 when it goes to the supraglottic or the subglottic region with or without impaired vocal cord mobility. 1 और 2 में फ़र्क समझ आया. 1 में वोकल कॉर्ड बिल्कुल भी इन्वॉल्व नहीं हुए, इसमें T2 में चांस है कि वोकल कॉर्ड इन्वॉल्व होते हैं या नहीं होते. T1 में जो आपका ट्यूमर है वो ग्लॉटिस में ही मौजूद है, लेकिन T2 में इट हैज़ गॉन टू द सुप्राग्लॉटिक और द सबग्लॉटिक रीजन, राइट, इस तरीके से. सेड टू बी T3 when the tumor is limited to the larynx.
और वोकल कॉर्ड्स भी फिक्स हो चुके हैं, ख़राब हो चुके हैं। और एक और स्ट्रक्चर, ठीक है, एंड और इन्वॉल्वमेंट यानी कि मतलब प्लस माइनस हो गया, इन्वॉल्वमेंट ऑफ एनी ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रक्चर, पैराग्लॉटिक स्पेस, इनर कॉर्टेक्स ऑफ द थायराइड कार्टिलेज। सो ट्यूमर इज लिमिटेड टू द लैरिंग्स इन T3। वोकल कॉर्ड ख़राब हो चुके हैं, ठीक है, फिक्स हो चुके हैं बिल्कुल, मोबिलिटी नहीं है, मोबिलिटी ख़राब हो चुकी है। ये दो चीज़ें तो पक्की हैं, लेकिन उसके अलावा जो स्प्रेड हो रहा है ट्यूमर वो हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता, यानी इनटू द पैराग्लॉटिक स्पेस, इनर कॉर्टेक्स ऑफ द थायराइड कार्टिलेज, राइट। देन T4, T4A, T4B, T4A और T4B, इस तरीके से। T4A कब कहते हैं बेटा, राइट, when the tumor invades the thyroid cartilage and any of the following extralaryngeal structure, esophagus, trachea, thyroid, infrahyoid strap muscle और टंग के muscles, it's said to be the T4B, जब ट्यूमर थायराइड कार्टिलेज को इन्वॉल्व करे और उसके अलावा बहुत डिस्टेंट मेटास्टेसिस हो जाए उसकी, जैसे कि वो कहाँ चला जाए कुछ इस तरीके से, इन्वॉल्विंग द इनकेसिंग ऑफ द कैरोटिड आर्टरी, मीडियास्टिनम में जाए, प्री वर्टिब्रल स्पेस में, ठीक है बच्चों, इस तरीके से। दिस वाज द ग्लॉटिक। Now comes the subglottic squamous cell carcinoma of the larynx, said to be T1 when the tumor is limited to the subglottis, vocal cord mobility is normal, said to be T2 when the tumor spreads from the subglottis to the glottis with or without impairment of the vocal cord mobility. How beautiful it is. Just you have to remember at least, yeah. It's T3 when the tumor is limited to the larynx, but T1 T2 में भी तो larynx के अंदर ही था ट्यूमर, फिर T3 में फ़र्क क्या हुआ, T3 में वोकल कॉर्ड ख़राब हो गए, T1 T2 में वोकल कॉर्ड सही थे। सेट टू बी T4A, T4B सेम लाइक द प्रीवियस वंस, ठीक है, बट अ लिटिल डिफरेंस लाइक T4A व्हेन द ट्यूमर इन्वेड्स इनटू द क्रिकॉइड और द थायराइड कार्टिलेज, लैरिंग्स का कैंसर है, क्रिकॉइड थायराइड कार्टिलेज को इन्वॉल्व कर लिया, एनी वन एक्स्ट्रा लैरिंजियल स्ट्रक्चर, इसोफेगस, ट्रेकिया, थायराइड ग्लैंड, इंफ्राहायोइड स्ट्रेप मसल। फॉर बी जब डिस्टेंट मेटास्टेसिस हो जाए, प्री वर्टिब्रल स्पेस में, मीडियास्टिनम में, इनकेसिंग ऑफ द carotid artery. So this was about the extent of the tumor. What about the regional lymph node metastasis? What about the regional lymph node metastasis? Is said to be N0 जब कोई भी lymph node involved नहीं हुआ. It is said to be NX when the minimum requirement to assist the regional lymph nodes cannot be met. मतलब N0 तो कोई भी lymph node बिल्कुल भी involved नहीं हुआ ना, NX जब involvement हुई है lymph nodes की, लेकिन किसी भी लिम्फ नोड को टेक करने के लिए कि हाँ इसमें मेटास्टेसिस हुई है, इसमें ट्यूमर आ गया है, वो मिनिमम रिक्वायरमेंट भी पूरी नहीं हुई, इतनी कम मेटास्टेसिस हुई है। इट इज सेड टू बी द N1 व्हेन देयर इज द इन्वॉल्वमेंट ऑफ द एप्सिलेटरल लिम्फ नोड्स, ओनली सिंगल एप्सिलेटरल लिम्फ नोड 3 सेंटीमीटर लेस इन द ग्रेटेस्ट डायमेंशन, यानी कि 3 सेंटीमीटर से भी कम इन्वॉल्वमेंट हुई है, और एप्सिलेटरल साइड का एक जो ना लिम्फ नोड। N2 में भी यही हुआ है, एप्सिलेटरल साइड के लिम्फ नोड इन्वॉल्व हुए हैं, सिंगल लिम्फ नोड, लेकिन मोर देन 3 सेंटीमीटर। सेड टू बी N2B, राइट, व्हेन द इन्वॉल्वमेंट ऑफ नॉट द सिंगल एप्सिलेटरल लिम्फ नोड बट द मल्टीपल एप्सिलेटरल लिम्फ नोड, मोर देन 3 सेंटीमीटर बट नॉट मोर देन 6 सेंटीमीटर। N2A और 2B का फ़र्क समझ आया बच्चों? 2A में सिंगल लिम्फ नोड थे एप्सिलेटरल, 2B में मल्टीपल एप्सिलेटरल लिम्फ नोड। 2A में 3 सेंटीमीटर से या ज़्यादा था, 6 सेंटीमीटर से कम, ठीक है। इसमें भी N2 में भी नॉट मोर देन 6 सेंटीमीटर। आई थिंक आई मेड अ मिस्टेक अर्लियर बट इट इज़ नाउ क्लियर। N2C व्हेन देयर इज इन्वॉल्वमेंट ऑफ नाउ नॉट द एप्सिलेटरल लिम्फ नोड, अब बायलेटरल या कंट्रालेटरल सिर्फ, ठीक है, इट इज़ नॉट मोर देन 6 सेंटीमीटर। सेड टू बी N3 व्हेन दोनों साइड के लिम्फ नोड इन्वॉल्व हुए हैं और मोर देन 6 सेंटीमीटर। आप N2 देख लो, 2A देख लो, 2B देख लो, 2C देख लो, 6 सेंटीमीटर से ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट नहीं हुई, सही है। 2A और 2B में आप देखो एप्सिलेटरल इन्वॉल्वमेंट है, 2C में बायलेटरल इन्वॉल्वमेंट है, N3 में मोर देन 6 सेंटीमीटर। इसके बाद व्हाट अबाउट मेटास्टेसिस, सेड टू बी द M0 व्हेन देयर इज नो डिस्टेंट मेटास्टेसिस, इज सेड टू बी द MX व्हेन द मिनिमम रिक्वायरमेंट टू असेस द प्रेजेंस ऑफ द डिस्टेंट मेटास्टेसिस कैन नॉट बी मेट, एंड सेड टू बी द M1 जब में डिस्टेंट मेटास्टेसिस प्रेजेंट है, ठीक है बच्चों, इस तरीके से। अब हम चलते हैं ज़रा क्लिनिकल प्रेजेंटेशन पे कि इफ़ समबडी हैज़ द लैरिंक्स का कैंसर, सो हाउ इज़ गोइंग टू कम टू यू। इफ़ इट इज़ द ग्लोटिक कार्सिनोमा, पेशेंट यूजुअली प्रेजेंट अर्ली, ठीक है, और ग्लोटिक कार्सिनोमा के अर्ली सिम्टम्स क्या होते हैं? ज़ाहिर सी बात, हॉर्सनेस, ठीक है, बिकॉज ऑफ द इन्वॉल्वमेंट ऑफ द वोकल कॉर्ड्स, ठीक है,
शुरू में तो यही सिम्टम होता है, लेकिन बाद में जब ग्लॉटिक कैंसर बड़ा होता है तो फिर दूसरे सिम्टम्स भी आते हैं। बाद में डिस्निया, स्ट्राइडर वगैरह हो सकता है। डिस्फेजिया इज़ रिलेटिवली रेयर। अगर हो रही है डिस्फेजिया तो इट इंडिकेट्स द इन्वेजन एंड इन्वॉल्वमेंट ऑफ द फेरिंग्स। लेरिंग्स से कैंसर निकल के फेरिंग्स को इन्वॉल्व कर चुका है। पेन रिलेटिवली अनकॉमन होता है, अगर होता भी तो बहुत लेट आता है। अदर सिम्टम्स लाइक कफ, इरिटेशन इन द थ्रोट, हेमोप्टिसिस मैलिग्नेंसीज में आती है। एनोरेक्सिया, वेट लॉस, ये तो जनरल साइंस है मैलिग्नेंसी के। स्वेलिंग इन द नेक ड्यू टू द रीजनल मेटास्टेसिस ऑफ द लिम्फ नोड। तो लिम्फ नोड आप पल्पेबल होगा गले के अंदर, थ्रोट में, वो इनलार्ज होगा। सुप्राग्लॉटिक कार्सिनोमा की प्रेजेंटेशन की बात करें तो बड़ा लेट प्रेजेंट करता है, ठीक है। सबसे पहले प्रेजेंट करता है आपका ग्लॉटिक कार्सिनोमा, ठीक है। सुप्राग्लॉटिक कार्सिनोमा लेट प्रेजेंट करता है, जब तक वो ट्यूमर बहुत एडवांस हो चुका होता है, ठीक है। जो मेन सिम्टम है सुप्राग्लॉटिक कार्सिनोमा में वो होता है डिस्फेजिया बेटा, फॉर सॉलिड्स एंड ऑब्वियसली चेंज ऑफ वॉइस आर द यूजुअल सिम्टम्स। तो दो मेन चीज़ें जो सुप्राग्लॉटिक कार्सिनोमा में होती हैं वो डिस्फेजिया और हॉर्सनेस, ठीक है। और सुप्राग्लॉटिक बहुत लेट प्रेजेंट होता है। व्हाट अबाउट सबग्लॉटिक कार्सिनोमा, वो भी लेट प्रेजेंट करता है। इसमें जो मेन कंप्लेन होती है वो डिस्निया और स्ट्राइडर होती है, ठीक है बच्चों। देन विल गो टुवर्ड्स द इन्वेस्टिगेशन एंड द ट्रीटमेंट ऑप्शन फॉर द स्क्वामस सेल कार्सिनोमा। द इन्वेस्टिगेशंस वी कैन ऑर्डर इन केस ऑफ दिस कैंसर, रेडियोलॉजी में प्लेन एक्सरे, CT, MRI एंड बेरियम स्वालो। बट डायरेक्ट लेरिंगोस्कोपी कैन बी रियली गुड। प्रिसाइज लोकेशन, साइज, एक्सटेंट पता चल सकता है कैंसर का। और सारे डायरेक्ट लेरिंगोस्कोपी में बायोप्सी का भी चैनल होता है, तो उससे आप बायोप्सी भी ले सकते हो ट्यूमर की, सही है। और आपने सर्जरी करके वो कैंसर बाहर निकाल लिया और फिर उसकी आप हिस्टोपैथोलॉजी करते हो, ठीक है। या फिर ज़रूरी नहीं है कि कैंसर को आपने रिमूव किया है सर्जिकली। पहले आप डायरेक्ट लेरिंगोस्कोपी करो, वहाँ से थोड़ा सा टुकड़ा ले लो, बायोप्सी ले लो, फिर उसकी हिस्टोपैथ करो और फिर आइडेंटिफाई करो कि किस तरह का कैंसर है। FNAC वेरी हेल्पफुल इन डायग्नोसिंग द रीजनल लिम्फ नोड मेटास्टेसिस। गले में इतनी बड़ी स्वेलिंग हो जाती है लिम्फ नोड के इन्लार्जमेंट की वजह से, क्योंकि इस कैंसर में लिम्फ नोड इन्वॉल्व होते हैं। तो लिम्फ नोड इतना बड़ा मिलता है आपको गले के अंदर, तो उसकी आप FNAC कर सकते हो, ठीक है। इस तरीके से ट्रीटमेंट ऑप्शन की बेटा जहाँ तक बात करें तो डिफरेंट ऑप्शन अवेलेबल है। सर्जरी इज़ अवेलेबल, रेडियो कीमो इज़ अवेलेबल, लेज़र थेरापी इज़ अवेलेबल, राइट। इस तरीके से for surgery there are the different surgical procedures available, ranging from the conservation laryngeal surgery to extended total laryngectomy, right। yeah, एक है कंजर्वेटिव प्रोसीजर, एक है टोटल लेरिंजेक्टमी। कंजर्वेटिव प्रोसीजर, टोटल लेरिंजेक्टमी में तो हम पूरा लेरिंग्स निकाल देते हैं, लेकिन कंजर्वेशन लेरिंजेक्टमी का फ़ायदा ये है कि सम पोर्शन ऑफ द लेरिंग्स इज स्टिल कंजर्व्ड, कुछ पोर्शन छोड़ देते हैं, ठीक है। पार्शियल रिजेक्शन ऑफ द लेरिंग्स में मेंटेन द नॉर्मल फंक्शंस। सो या दो चीज़ें, एक तो कंजर्वेशन मेथड है, एक बेटा आपके पास टोटल लेरिंजेक्टमी। टोटल लेरिंजेक्टमी में तो पूरा आप लेरिंग्स निकाल दोगे, कंजर्वेशनल मेथड में कुछ हिस्सा आप लेरिंग्स का छोड़ देते हो ताकि उसका फंक्शन बरकरार रहे, प्रिजर्व रहे, ठीक है जी। अच्छा, कंजर्वेशन लेरिंजेक्टमी के डिफरेंट प्रोसीजर्स होते हैं, जैसे कि कॉर्डेक्टमी, हेमी लेरिंजेक्टमी और फ्रंटोलेटरल पार्शियल लेरिंजेक्टमी, एपिग्लोटेक्टमी, सुप्राग्लॉटिक पार्शियल लेरिंजेक्टमी एंड द सब टोटल लेरिंजेक्टमी। तफसील किसी काम की नहीं है आपके, बस आपको ये पता होना चाहिए कि ये कंजर्वेटिव प्रोसीजर्स हैं जो कि हम कर सकते हैं। और इसमें हम पूरा लेरिंग्स नहीं निकालते, इसमें कुछ हिस्सा निकालते हैं लेरिंग्स का, बाकी छोड़ देते हैं ताकि फंक्शन प्रिजर्व रहे लेरिंग्स का, ठीक है बच्चों। लेकिन जो टोटल लेरिंजेक्टमी है इज द रिमूवल ऑफ द एंटायर लेरिंग्स इंक्लूडिंग द हाइवाइड बोन एंड द प्री एपिग्लोटिक स्पेस एज वेल, ठीक है। आफ्टर द रिमूवल ऑफ द लेरिंग्स, ट्रेकिया इज ब्रॉट टू द स्किन सरफेस एंड द परमानेंट ट्रेकियोस्टोम इज मेड। देखो अब पहले क्या था, ये आपका लेरिंग्स है, ठीक है, उसके नीचे ये ट्रेकिया होता है, सही है। अब लेरिंग्स तो आपने पूरा यहाँ से कट करके निकाल दिया, अब इस ट्रेकिया का क्या करें, इसका तो कहीं ना कहीं कनेक्शन बनाना है ना, तो इसको बाहर ट्रेकिया को स्किन के साथ ट्रेकियोस्टोम बना के बाहर कनेक्शन बना देते हैं, ठीक है बच्चों, इस तरीके से, राइट बेटा। तो परमानेंट ट्रेकियोस्टोम बना देते हैं हम नेक के अंदर कुछ इस तरीके से, और पेशेंट को सारी ज़िंदगी जो है बेटा लाइफ लॉन्ग यहीं से जो है सांस को अंदर लेना है और बाहर निकालना है, ठीक है जी। द पेशेंट हैज़ टू ब्रीथ थ्रू दिस ट्रेकियोस्टोम फॉर द रेस्ट ऑफ हिज लाइफ, राइट, ओके। So yeah, the voice is lost after the total laryngectomy। total laryngectomy करेंगे, सारा larynx निकाल देंगे तो बेटा जाहिर है vocal cords भी चले जाएंगे, तो पेशेंट को complete loss of the voice हो जाएगा। In case of the extended total laryngectomy, along with the whole larynx, the neighboring structures are also removed, like a pharynx, trachea, esophagus, tongue, and the thyroid gland,
इफ़ इन्वॉल्व बाय द ट्यूमर, अगर इतना ट्यूमर फैल चुका है, इन एरियाज़ को भी इन्वॉल्व कर चुका है, तो फिर हम एक्सटेंडेड टोटल लेरिंजेक्टमी करते हैं, जिसमें लेरिंग्स के अलावा दूसरे स्ट्रक्चर भी रिमूव करते हैं। बेटा सर्जरी के अलावा कीमोथेरापी और रेडियोथेरापी का, लेज़र का अपना रोल है। रेडियोथेरापी इफ़ द ट्यूमर इज स्मॉल, द कैंसर इज स्मॉल, और जब सर्जरी कंट्रा इंडिकेटेड हो, ठीक है। सो रेडियोथेरापी कैन बी यूज्ड एंड इट कैन बी यूज्ड इन कॉम्बिनेशन विथ अदर मोडालिटीज़, राइट। ओके, लाइक रेडियोथेरापी कंबाइंड विथ कीमोथेरापी, इस तरीके से। And also post-operative radiotherapy is administered where the risk of the local or regional recurrences is high. So you can perform the surgical removal of this cancer or you can perform the radiation. Radiation alone can be used. और बहुत सारे केसेस में ऐसा होता है कि सर्जरी करने के बाद हम पेशेंट को रेडियो देते हैं, ताकि सर्जरी करने के बाद दोबारा रिकरेंस के चांसेस होते हैं कैंसर के, अगर कहीं पे रह जाए तो फिर जब हम रेडिएशन देते हैं पोस्ट ऑपरेटिवली तो वो रिकरेंस के चांसेस कम हो जाते हैं, ठीक है बच्चों। After the radiotherapy comes the chemotherapy. Chemotherapy prior to surgery in the locally advanced tumors is given to produce the regression of the tumor. सर्जरी करने से पहले कीमोथेरापी दी जाती है ताकि जो ट्यूमर है वो सिकुड़ जाए, श्रिंक हो जाए अपनी साइज़ में, और उसको सर्जिकली रिमूव करना बड़ा आसान हो जाए। इन एडवांस ट्यूमर्स कीमोथेरापी कैन बी कंबाइंड विद द रेडियोथेरापी इन वैरायटी ऑफ वेज, राइट बेटा। लेज़र यूज़ करके इसको हम ट्यूमर को, जो छोटे लोकलाइज ट्यूमर्स होते हैं उनको हम रिमूव कर सकते हैं, ठीक है। कार्बन डाइऑक्साइड लेज़र यूज़ कर सकते हैं फॉर अर्ली ग्लोटिक एंड द सुप्राग्लोटिक कार्सिनोमास, ठीक है बच्चों। इस तरीके से ये पिक्चर है टोटल लेरिंजेक्टमी के बाद, ये आपने पूरा लेरिंग्स निकाला हुआ है, राइट। इज द स्पेसिमेन ऑफ द लेरिंग्स आफ्टर द टोटल लेरिंजेक्टमी, ठीक है बच्चों। नाउ द सिलेक्शन ऑफ द ट्रीटमेंट, वेदर वी हैव टू गो विद द सर्जरी, टोटल लेरिंजेक्टमी, or we have to go with the chemotherapy, radiotherapy or the laser therapy, depends on what? Depends upon the number of the factors, like what is the site of the cancer. Like in case of supraglottic and glottic localized small tumors, we can use the laser therapy, right. It depends on the age of the patient, profession of the patient and other treatment facilities. If the squamous cell carcinoma is small, T1 lesion of the glottic area, they are best treated by the radio or laser therapy. T1 glottic area का, T1 and T2 lesions of the supraglottis and T2 lesion of the glottis are treated by radiation and laryngeal surgery। कौन सी? कंजर्वेटिव। अच्छा ठीक है, समझ आया। T1 अगर ग्लॉटिक एरिया में है तो हम रेडियो या लेज़र करते हैं, अगर ग्लॉटिस में T2 है तो हम रेडियो या फिर कंजर्वेशन या लेरेंजियल सर्जरी करते हैं, और T1 T2 अगर आपके सुप्राग्लॉटिस में तो उसमें भी कंजर्वेशन और लेरेंजियल सर्जरी करते हैं, ठीक है बच्चों। T3 एंड T4 लेजेंस ऑफ वाट एवर एरिया, दे आर ट्रीटेड बाय द पार्शियल, टोटल और एक्सटेंडेड टोटल लेरिंजेक्टमी, ठीक है। फ़र्क पता है ना, पार्शियल लेरिंजेक्टमी, टोटल लेरिंजेक्टमी और एक्सटेंडेड टोटल लेरिंजेक्टमी का, ठीक है बच्चों। अच्छा, और इफ़ देयर आर द एडवांस्ड लेरिंजियल कैंसर्स, वाइड स्प्रेड मेटास्टेसिस, देन कंबाइंड ट्रीटमेंट, सर्जरी, रेडियो, कीमो साथ में हम यूज़ करते हैं। समझ आई बात बेटा? तो स्टेजिंग के हिसाब से हम इस कैंसर को भी ट्रीट करते हैं, सही बच्चों। एंड देन दैट व्हाट अबाउट द ट्रीटमेंट ऑफ द नोडल मेटास्टेसिस, जो कैंसर बेटा आपके लिम्फ नोड्स को इन्वॉल्व कर चुका है, डिपेंड करता है। अगर N1 N2 स्टेज है देन ट्रीटेड बाय द सर्जरी, रेडिकल नेक डाइसेक्शन करते हैं और इन लिम्फ नोड्स को हम रिमूव कर देते हैं। अगर N3 स्टेज है देन व्हाट हैपन्स, लेट मी टेल यू व्हाट डू वी डू is considered as contraindication for the corrective surgery। फिर उसमें हम N3 में रेडियो और कीमो कम्बिनेशन में, रेडियो कीमो कम्बिनेशन में या अलोन देते हैं। सो इट इज़ क्लियर दैट इफ़ इट इज़ द N1 स्टेज देन, या इन केस ऑफ N1 स्टेज, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, येस जस्ट अ सेकेंड, N1 एंड N2 में वी प्रीफर द सर्जिकल नेक डाइसेक्शन एंड द रिमूवल ऑफ द लिम्फ नोड्स। इन केस ऑफ N3 contraindication of the surgery is there and we perform the radiotherapy or chemotherapy, right बेटा, इस तरीके से। What about the treatment of the distant metastasis? If the tumor has gone to the liver, lungs, brain, then treatment depends upon the site and extent of the disease बेटा, obviously। फिर उस हिसाब से हम सर्जरी, उस जगह की रेडियो या फिर कीमोथेरापी देते हैं लिवर को, तो या फिर कम्बिनेशन थेरापी, तो उससे वो चीज़ भी ठीक हो जाती है, राइट बेटा। नाउ कम्स द वॉइस रिस्टोरेशन आफ्टर द लेरिंजेक्टमी। जब आप लेरिंग्स निकालते हो बेटा तो फिर तो आवाज़ का तो कोई चांस ही नहीं बनता, क्योंकि वोकल कॉर्ड्स आपने निकाल दिया लेरिंग्स के साथ, तो साउंड प्रोड्यूस ही नहीं होगा, पेशेंट कभी बोल ही नहीं पाएगा। सो
After total laryngectomy, what is the procedure for the voice restoration? There are some operations for the restoration of the voice, you know. हम आवाज़ को वापस ला सकते हैं इवन लैरिंग्स निकालने के बाद भी। सो उसके 3 तरीके हैं। एक होती है ईसोफेजियल स्पीच, कि आवाज़ आप लैरिंग्स के बजाय अब ईसोफेगस से निकालना शुरू करें। कैसे बताता हूँ। ट्रेको ईसोफेजियल फिस्टुला, ट्रेकिया और ईसोफेगस के बीच में फिस्टुला बनाएं। ट्रेकिया और ईसोफेगस के बीच में एक फिस्टुला बनाएं और दोनों के बीच में एक प्रोस्थेसिस लगा दें, जो कि डिवाइस क्या करेगी, ट्रेकिया से उठा के एयर को ईसोफेगस में फेंकेगी और ईसोफेगस जो है साउंड बना के आपको बाहर देगा। और एक डिवाइस आती है इलेक्ट्रोलैरिंग्स, ये भी हम यूज़ कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, इस तरीके से। वेरी फर्स्ट थिंग इज द ईसोफेजियल स्पीच। In the esophageal speech, the patient is trained to store air in the esophagus and the sound is produced by the vibrating cricopharyngeus muscle in the junction of the pharynx and the esophagus. How interesting it is. ये बहुत मुश्किल है पेशेंट को इस चीज़ के लिए ट्रेन करना। प्रॉपर क्लासेस लेनी पड़ती हैं, ट्रेनिंग होती है इसकी, और बड़ा टाइम लगता है ये ईसोफेजियल स्पीच डेवलप करने में। ऐसे इतना आसान नहीं है ईसोफेगस से आवाज़ निकालना। क्या करते हैं इसमें, वी ट्रेन द पेशेंट कि वो ईसोफेगस के अंदर एयर को स्टोर करे, और जब एयर जमा होगी ईसोफेगस के अंदर तो जो क्रिकोफैरिंजियस मसल्स हैं वो वाइब्रेट करेंगे और साउंड प्रोड्यूस होगी, और फिर साउंड प्रोड्यूस होकर ऊपर आएगी ईसोफेगस से फेरिंग्स में, फेरिंग्स से ऊपर आ जाएगी माउथ में, तो फिर माउथ में तो आप उसको आर्टिकुलेट कर सकते हो अपने हिसाब से। ठीक है, टंग से, पैलेट की मदद से, लिप्स की मदद से, और आप जो बोलना चाहते हो वो बोल लोगे। द एडवांटेज ऑफ द ईसोफेजियल स्पीच आर, ये कॉस्ट इफेक्टिव है। ठीक है, बहुत कम पैसों में ट्रेनिंग लेके हो जाता है। कोई डिवाइस नहीं लगती, कोई इलेक्ट्रोमैग्नेटिक डिवाइस नहीं चाहिए, कोई प्रोसेसिस नहीं लगता। ठीक है, कोई ऐसा नहीं कि कोई डिवाइस लगाई जिसकी वजह से एस्पायरेशन ऑफ फूड हो गया, नहीं। ठीक है, कोई एडिशनल सर्जरी की ज़रूरत नहीं पड़ी। लेकिन एक बहुत बड़ा डिसएडवांटेज इसका, और ऑब्वियस डिसएडवांटेज ये है, इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट एंड टाइम कंज्यूमिंग टू लर्न। इसके लिए स्पेशलाइज्ड ट्रेनिंग चाहिए होती है, एंड पेशेंट कैन स्पीक ओनली शॉर्ट सेंटेंसेस। He cannot speak very fluently like he used to speak with the help of the vocal cords in the larynx. तो ईसोफेगस से बोल सकता है लेकिन बहुत शॉर्ट सेंटेंसेस, और उसमें सीखने में बहुत टाइम लगता है बच्चों। सही है। देन कम्स अनदर प्रोसीजर एंड इट इज़ द ट्रेकियो, जस्ट अ सेकेंड, ट्रेकियो ईसोफेजियल फिस्टुला विद द वॉइस प्रोस्थेसिस। इसमें हम क्या करते हैं, शंट बनाते हैं ट्रेकिया और ईसोफेगस के बीच में, एंड द एयर फ्रॉम द लंग्स इज डाइवर्टेड थ्रू द शंट into the esophagus। ठीक है, इस तरीके से। and different types of voice processes are available which can be fitted into this tracheoesophageal fistula। समझ आई बात बेटा। हम क्या करते हैं, अगर आपका ये ट्रेकिया है, so what we do is we just make a connection, the fistula between the trachea and the esophagus, right? This is the esophagus and this comes the trachea in front, right? So what we do, we made a fistula. So if there are here are the lungs, right? And the air from here, when it expirates out, some air goes here into the esophagus, और बीच में हम एक प्रोस्थेसिस लगा देते हैं। और प्रोस्थेसिस का काम क्या होता है, जब यहाँ पे एयर आए, जब यहाँ से हवा पास हो, तो ये प्रोस्थेसिस डिवाइड इस फिस्टुला के बीच में लगी होती है, और ये प्रोस्थेसिस डिवाइड क्या करती है, जब यहाँ से इस प्रोस्थेसिस डिवाइस में से, प्रोसेसेस में से जब एयर गुजरती है तो ये साउंड प्रोड्यूस करके देती है, और फिर ये साउंड ईसोफेगस के थ्रू ऊपर जाता है फेरिंग्स में, और फिर माउथ में, और आप बोल पाते हो। सो यू डेवलप ए शंट बिटवीन द ट्रेकिया एंड ईसोफेगस एंड एयर फ्रॉम द लंग्स इज डाइवर्टेड थ्रू दिस शंट इनटू द ईसोफेगस। प्रोस्थेसिस आर अवेलेबल जिसको फिट करते हैं ट्रेकियो ईसोफेजियल फिस्टुला में। व्हेन द एयर पासेस थ्रू दिस प्रोस्थेसिस इट प्रोड्यूसेस द साउंड, एंड या दैट्स इट। Processes actually act like one-way valve, allowing the air to pass from the trachea into the esophagus। ये वन वे वेल्व का काम करता है, सिर्फ हवा को यहाँ से यहाँ आने देता है। ऐसा नहीं कि ईसोफेगस से जो फूड आएगा वो फूड यहाँ से फिर ट्रेकिया में चला जाए, ये तो बड़ा मसला हो जाएगा। इसलिए जो प्रोसेसेस होती है वन वे वेल्व होता है, सिर्फ और सिर्फ इस तरफ खुलता है, इस तरफ नहीं खुलता, तो इसमें फूड के इधर जाने का मसला नहीं होता। ठीक है बच्चों। Yeah, so this processes act like a one-way valve, allowing the air to pass from the trachea into the esophagus, but prevent the food and saliva to enter into the trachea. Different तरह के processes आते हैं, Bloom, Singer's processes, Penge's button, Provox processes, Singh's processes, ये आते हैं। एक लास्ट चीज़ बेटा जिसको हम कहते हैं electrolarynx। Electrolarynx is a hand-held external electromagnetic vibrator which produces the sound. This sound is then articulated in a normal way to produce the speech। कुछ इस तरीके से ये डिवाइस होती है,
आप इसको सिर्फ यहाँ पे हाथ में पकड़ के रखते हैं और आवाज़ प्रोड्यूस होती है और फिर उसको आप उसी तरीके से आर्टिकुलेट करते हैं माउथ के थ्रू, ठीक है। इसकी ज़्यादा तफसील नहीं दी हुई, वरना इसके बारे में ज़रूर मैं समझाता। एंड दिस इज़ ऑल अबाउट बेटा दिस चैप्टर। थैंक यू सो मच बच्चों। क्लास डिसमिस्ड।